Good morning, student. Today we are going to study economics. Okay, chapter 2, people as resource. People as resource. How people is considered as resource. Human considered as resource. Okay, as you know, human resource can make use of land and capital. Okay, land and capital, that means human capital is the best among all resources. Whatever the resources we have them, among them, human capital is the best. Okay, human capital is the best among all the resources. Okay, human resource can make use of land and capital. Okay, land and capital cannot become useful on its own. Okay, in this respect human resource is superior to other resources. Okay, यानी जो भी संसाधन हमारे मानव के पास है ना, उसमें सबसे बड़ा संसाधन क्या है? ह्यूमंस. हाउ दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस इनसाइड दिस chapter. Yani how people is not a burden, okay, or a liability. Okay, that is the asset. That is the asset ना. यानी people कैसे asset है ना, burden नहीं है, liabilities नहीं है. If the people are educated and healthy, तो they can be considered as a big asset. Big asset. दे आर नॉट द बर्डन और अ लाइबिलिटी, है ना. तो आज का सब्जेक्ट यही है, पीपल एज रिसोर्स. इन दिस साइड चैप्टर वट एवर वी आर गोइंग टू रीड that is the composition of human resource. How the human resource composed, the sex composition, age structure, literacy levels, okay, high population, okay, asset और liability, इंडियाज रिलेटिव पोजीशन, है ना, इंडिया का वर्ल्ड में रिलेटिव पोजीशन क्या है, एंड हाउ पीपल कैन बिकम एसेट, और ना मेन थिंग. ओके, हाउ पीपल कैन बिकम एसेट इफ दे आर एडुकेटेड और हेल्दी. ओके, then okay, economic activities by men and women, economic activities, non-economic activities, work participation rate for women, okay, unpaid work and women's education, role of health in human resource development, present status of women, health profile, India sex ratio, unemployment, such and such things which we are going to study that. Okay, so let's start the chapter people as resource. Okay, today our population is projected to have risen to around 1.21 billion as against 361 million, okay, in 1951. यानी आप 50 की भारत की आबादी देखिए और आज 2020 की आबादी देखिए, बेतहासा वृद्धि हुई है. ठीक है. The population we have added over these years is equivalent to half that of चाइना, है ना. इतना पॉपुलेशन हमारे यहाँ बड़ा है. वी कंस्टिट्यूट 70, माइंड दैट वी यानी इंडिया कंस्टिट्यूट 17.5% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन. यानी टोटल विश्व की आबादी में 17.5% आबादी हमारे देश का है ना. अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री इंडिया है. ओके, लाइक दैट. एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, है ना. ये क्या होता है? डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन यानी पर स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग वहां रहते हैं, है ना. डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एज पर 2001 सेंसस, इंडिया हैज 17.5% ऑफ द टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन टुडे, विच मेक्स इट द मोस्ट क्राउडेड कंट्री इन द वर्ल्ड. ओके, यानी विश्व में सबसे ज्यादा क्राउडेड हमारे देश में पॉपुलेशन का है ना. वी कंस्टिट्यूट 17.5%. ओके,
of the total world population today, which makes it the most crowded country in the world. China is better placed in this regard because its density of population is 133 person per square kilometer. Now, mind that. Yani China is the most of the populous country in the world, and we, India, that is the second position. But so far as the density of population is concerned, है ना, वहां हम चाइना से बहुत आगे हैं, है ना. यानी हमारा देश बहुत क्राउडेड है, बहुत सो मच क्राउडेड. कैसे? ये जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है ना, वो मैं आपको बता दूं कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज 133 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, वाइल इट इज 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर इन इंडिया. यानी इंडिया में 1 किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग क्राउडेड हैं, कितने लोग बसते हैं? 382. वेयर एज इन चाइना दैट फिगर इज ओनली 133. तो कहा 133 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर चाइना में है, डेंसिटी है, रेट है. और भारत में कितना है, हमारे देश में कितना है? 382. तो हाउ मच crowded of our country. Okay, like that the world average density is 45 persons per square kilometer. अगर वर्ल्ड का एवरेज अगर आप देखें तो कितना है? 45 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर. ओके, वर्ल्ड का 45 पर स्क्वायर, चाइना का 133. ओके, एंड चाइना इज द मोस्ट ऑफ द पॉपुलस कंट्री. बट आवर कंट्री इंडिया, आप हमारा डेंसिटी रेट कितना कहता है? 382 पर स्क्वायर किलोमीटर. ओके, यू कैन थिंक दैट ऑन एशिया के कंटेक्स्ट में देख लीजिए, है ना. एंड एशियन एवरेज इज 116 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया. ओके, एशियन कंटेक्स्ट में कितना है? 116. वर्ल्ड वाइड कितना है? जस्ट 45. चाइना कितना है? 133. बट आवर कंट्री कितना है? 382 पर स्क्वायर किलोमीटर. ओके, हाँ, डेंसिटी आपको बताया कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग वहां बसते हैं, है ना, उसको डेंसिटी बोलते हैं. द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस area is called population density. That's clear. India is one of the most densely populated countries of the world. One of the most densely populated countries of the world. Within the country, the density varies from region to region. Okay, और अपने देश में देखिए तो region to region density, rate of density vary करता है. Okay, वैरी करता है. यानी कौन सा रीजन ज्यादा डेंसाइल है? अब जैसे डेजर्ट में डेंसाइल रहेगा, माउंटेनियस रीजन दैट डेंसाइल रहेगा? नहीं रहेगा. क्लाइमेट सूट नहीं करता है. कहीं हॉट है तो कहीं कहीं टू चिल्ड है, टू कोल्ड है, लाइक दैट, है ना. मोस्ट फेवरेबल क्लाइमेट भी चाहिए ना, और सारा रिक्वायरमेंट भी चाहिए. गैंगटिक प्लेन का देखिए, वो तो ऑफ कोर्स रहेगा. There is alluvial soil due to the fertile soil, like that. As per, अब देखेंगे impact of interstate variation. Okay, what we are going to study, that we are going to study about the impact of interstate variation on population. Okay, within country, यानी region to region that vary. Okay. As per 2001 census, the population of India is projected around 1.21 billion. Okay, at present. Okay, 2001 census indicated several interstate variation among various states. Okay, variation बताया था. क्या था? Population estimates are also different for many of the states. ना, अगर पॉपुलेशन एस्टिमेट्स भी देखे, उस बेस पे भी वेरिएशन देखने को मिलता है स्टेट वाइज. पॉपुलेशन विल कंटिन्यू टू ग्रो एट हायर रेट इन बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान, है ना. यानी यहाँ ग्रोथ रेट ज्यादा है. पॉपुलेशन ऑफ आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, पंजाब, हरियाणा एंड तमिलनाडु वुड इंक्रीज एट लोअर रेट. वहां लोअर रेट है ना.
This difference will have major impact on the health, education, employment, interstate migration, etc. That's why, है ना, दैट्स वाई जहां यानी लोअर रेट है पॉपुलेशन इंक्रीमेंट का, वहां क्या क्या होगा, सही एजुकेशन रहेगा, सही हेल्थ केयर रहेगा, एम्प्लॉयमेंट वहां ज्यादा रहेगा, है ना, और पीपल माइग्रेट कम करेंगे वहां, है ना, और जहां क्राउडेड रहेगा, जहां लोअर रेट ना होकर के हाई रेट रहेगा, इंक्रीजिंग इन पॉपुलेशन इन हायर रेट, वहां क्या होगा, उस स्थिति में एजुकेशनल स्टेटस, हेल्थ स्टेटस, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, है ना, माइग्रेशन स्टेटस, ये सब निगेटिव वे में रहेगा, नॉट पॉजिटिव वे, है ना, लाइक दैट। अब देखेंगे कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस। ओके, जनरली द ट्रेड्स सच एज एज, sex, literacy, occupation, language, ethnicity, tribe and religion explain the basic characteristics of human population. Okay, here we will look at three major components of population. So these are the such and such components of the population. Okay, among them we are going to explain, we are going to see that the major components such as sex composition, age structure and literacy level. Okay, let's start the first, sex composition. ये क्या होता है? Although the sex ratio had increased to 933 per 1000 males in the 2001 census from 927 per 1000 males in 1991, है ना, यानी कि 1991 में देखो तो पर 1000 मेल पे पर 1000 फीमेल की का नंबर कितना था, 927। ओके, तो थोड़ा उछाल आया है, थोड़ा सा हम बेटर हुए हैं, यानी अब कितना हुआ है, 933, यानी 2001 में है ना, कितना हो गया है, 933 पर 1000 मेल्स। ओके, यानी पर 1000 मेल में नंबर ऑफ फीमेल्स दैट इंक्रीज दैट रीच्ड अप टू 933। ओके, तो सेक्स रेशियो थोड़ा बेटर हुआ है। ओके, yet there is declining sex ratio among 0 to 6 years कैटेगरी, है ना, लेकिन नीचे आप देखोगे 0 to 6 एज ग्रुप, है ना, चिल्ड्रन एज ग्रुप में, वहां वो क्या है, वो डिक्लाइंड है, वहां क्या है, डिक्लाइंड है, ड्यू टू द फीमेल फर्टिसाइड, फीमेल इन्फेंटिसाइड, है ना, सच एंड सच कॉजेज, है ना, लाइक दैट। The sex ratio in this category is low in Delhi. कहाँ सेक्स रेशियो कम है ना, ये नहीं है कि ये गांव में है ना, मेट्रोपॉलिटन सिटी, मेगापॉलिटन सिटीज में आप देखिएगा तो बेतहासा वहां सेक्स रेशियो आपको कम देखने को मिलेगा, सच एज दिल्ली। ओके, दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब एंड हरियाणा, यहाँ क्या है, सेक्स रेशियो कम है, यानी पर 1000 मेल द नंबर ऑफ फीमेल्स that is less. Okay, that is less. As per census of India 2011, the sex ratio had increased to 940 female per 1000 male, है ना, यानी इतना करने का टारगेट किया गया है, कितना, 940। Okay, the next components of the population that is the age structure, है ना, एज स्ट्रक्चर। अब एज के आधार पे, आयु के आधार पे पॉपुलेशन का क्या संरचना है। एज इज एन एसेंशियल एट्रीब्यूट ऑफ द पॉपुलेशन टू डिटरमाइन ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर, लिटरेसी लेवल, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड अदर सिमिलर एट्रीब्यूट्स। ओके, द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। ओके, एज के आधार पे पॉपुलेशन को एज अ होल को वी कैन क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। ओके, 0 to 14 years, that is the children. Okay, the children, and 15 to 64 years, 15 to 64 years, and after 65 and later. Okay, 65 years and above. Okay, यानी कि एजेड पीपल, है ना, एजेड पीपल। द शेयर ऑफ वर्किंग एज ग्रुप, है ना, वर्किंग ग्रुप में किसका से कौन सा एज ग्रुप आता है, 15 to 64,
60 के बाद तो लोग रिटायर हो जाते हैं. ओके, तो 15 to 64 इज ऑलवेज ग्रेटर देन द अदर एज ग्रुप्स. ओके, ज्यादा रहा है. द हाई इनकम कंट्रीज हैव हाई परसेंटेज ऑफ एज्ड पीपल एंड ओनली 35 to 40% चिल्ड्रन. ओके, कहाँ पे? हाई इनकम कंट्रीज, जहां जिस कंट्री का आय बहुत ज्यादा है ना, वहां एजेड पीपल एंड ओनली 35 से 40% ही बच्चों की ये रहती है. इंडिया हैज 34% ऑफ इट्स पॉपुलेशन इन द यंगर एज ग्रुप्स, है ना. इट हैज ऑल्सो अ ग्रेट शेयर ऑफ पीपल इन द वर्किंग एज ग्रुप. इसलिए कि उस जो चिल्ड्रन एज ग्रुप में है, तो भारत में क्या है? वर्किंग एज में भी है. द चाइल्ड लेबर, you know, यानी below the age of the 14, they are working as a domestic or the at the tea stall. Okay, like that, है ना. लीगली वो मना है, लेकिन फिर भी क्या करें? ड्यू टू द पोवर्टी, है ना. बच्चे ये बकरी चराते हैं, ये करते हैं, है ना. डोमेस्टिक वर्कर के रूप में है, चाय की दुकान पे हैं, कहीं कहीं ये में भी कारखाने वगैरह में भी बच्चे काम कर रहे हैं, है ना. लाइक दैट. तो दिस इज द सच एंड सच सिचुएशन. द थर्ड कंपोनेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन, दैट इज द लिटरेसी लेवल. ये क्या है? लिटरेसी रेट हैज इंक्रीज फ्रॉम 52.21% to 65.38% ड्यूरिंग 1991 to 2001, है ना. यानी लिटरेसी रेट हमारे यहाँ जरूर बढ़ा है, लेकिन अभी भी इसमें बहुत कुछ करना बाकी है ना. लिटरेसी मतलब जस्ट यानी पढ़ने लिखने का ये ज्ञान होना चाहिए. यू आर एबल टू रीड और राइट, है ना, इन एनी लैंग्वेज, है ना. ये नहीं कि इंग्लिश ही, है ना. नॉट लाइक दैट. एनी रीजनल लैंग्वेज. ओके, लाइक दैट. They are that is considered literate or literacy level, है ना. But the female literacy rate has just increased from 39.38% in 1991 census to 54.28% in 2001 census. यानी लिटरेसी एज होल आप ये देखिए, और लिटरेसी इन फीमेल, है ना, इन कंपेयर टू मेल, है ना, तो वहां स्थिति और बद से बदतर है. दैट्स वाई आर गवर्नमेंट क्या कर रही है ना, फीमेल एजुकेशन पर ज्यादा स्ट्रेस दे रही है. लाइक दैट, है ना. अब जो आगे देखेंगे वो क्या है? द मेन थिंग दैट इज कि हाउ पॉपुलेशन एसेट और लाइबिलिटी. हाउ पॉपुलेशन एसेट और लाइबिलिटी, यानी कैसे ये जो पीपल हैं, जो आबादी है ना, वो एसेट भी है और लाइबिलिटी भी है. अगर वही पीपल एडुकेटेड है, हेल्दी है, स्किल्ड है ना, तो कैसे वो एसेट है अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए और पूरे वर्ल्ड वाइड, है ना. एसेट है. हाउ ही और सी प्रोवाइड आइदर द प्रोडक्टिव गुड्स और द प्रोडक्टिव सर्विसेज टू द वर्ल्ड और टू द country or to the society. Okay, but if they are not healthy, they are suffering from diseases, and they are not skilled or unskilled, है ना, यानी less educated, है ना, तो how that become a liability. Okay, liability for the family or the society or as a country or global wide. Okay, like that, you know, like this. Developing countries think increase in population as liability and cause of all socio-economic problems. Okay, but you know, as you know, there are three types of countries: developed, underdeveloped, and developing. And India is neither developed nor underdeveloped. Our country is developing country. तो developing country का वो सोच है ना, उसको क्या, यानी पॉपुलेशन को लाइबिलिटी समझता है ना. बट डेवलप्ड नेशंस हैव अ डिफरेंट व्यू. डेवलप्ड नेशन का एक अलग व्यू है, अलग विचार है. वो क्या? दे टेक इट एज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड एसेट टू द नेशन ना. वे नेशन के लिए एसेट समझते हैं
है ना, पीपल को, कौन, डेवलप्ड कंट्री, माइंड दैट, बट इट वुड नॉट बी प्रॉपर टू एज्यूम द होल पॉपुलेशन एज अ रिसोर्स, ओके, नॉट एज अ होल पॉपुलेशन एज अ रिसोर्स, इट इज द स्किल्ड एंड ट्रेन्ड पॉपुलेशन, माइंड दैट, the skilled and the trained population only which we can termed as a factor or a production and asset to the country and can participate and contribute in nation building. Nation building में वही contribute करते हैं जो skilled है ना, जो skilled है और जो trained population है. The trained population and a skilled population can play a vital role and they can contribute in the national बिल्डिंग और इन द नेशनल डेवलपमेंट, ओके. और अदरवाइज अगर आप अनहेल्दी हो, अनएडुकेटेड हो, तो क्या हो, यू आर एज अ लायबिलिटी और एज अ बर्डन, है ना, और एज अ बर्डन फॉर द सोसाइटी, फॉर द नेशन, है ना, फॉर द वर्ल्ड, है ना, एज ए होल, लाइक दैट. इन इंडिया about 35% of its population is illiterate, mind that. नो, हमारे यहाँ एक चौथाई आबादी आज भी क्या है, निरक्षर है, पढ़ना लिखना नहीं जानता ना, कला अक्षर भैंस बराबर, लाइक दैट ना. एंड दिस पार्ट ऑफ पॉपुलेशन 400 million लेबर फोर्स कैन नॉट बी कॉल्ड प्रोडक्टिव और स्किल्ड, है ना, और ये प्रोडक्टिव और स्किल्ड दे कैन नॉट बी कंसीडर्ड, ओके. गवर्नमेंट हैज टू बियर द बर्डन ऑफ द फीडिंग, है ना, सरकार के कंधों पे उनका बर्डन है ना, क्या, टू फीडिंग, खाना खिलाना, एडुकेटिंग, शिक्षा देना, हाउसिंग, घर देना ऑफ दिस कैटेगरी ऑफ पॉपुलेशन. तो क्या है, दैट इज द बर्डन ना, दैट इज द लायबिलिटी ना. They are not trained, they are not skilled, they are not healthy, they are not educated, no. In that case that population can be considered as a burden or as a liability, never considered as a asset, okay. So there is a need, okay. Such a population is certainly a सोशल लायबिलिटी एंड कैन नॉट बी कॉल्ड एन एसेट. तो सामाजिक लायबिलिटी है दैट कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ एसेट, है ना, वो एसेट नहीं है. इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, ओके, एंड अबाउट 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर, okay. Agricultural operation do not provide any expertise and skill to the labor force, ना. Such a labor cannot be utilized in other industries also, okay. तो वहां उनको आप दूसरे इंडस्ट्री में भी यूज नहीं कर सकते. जो लोग खेती बाड़ी में हैं, अगर उनको दूसरे काम में आप लगा दो तो दे आर एबल टू डू दैट, नेवर, लाइक दैट. इफ दे राइज इन पॉपुलेशन continue at the present rate, India would catch up with China to become the most populous country in the world by the middle of this century, है ना. तो कुछ ही सालों में हम क्या करेंगे, चाइना को छोड़ करके हम आगे निकल जाएंगे, है ना. बेतहासा जो पॉपुलेशन जो एक्सप्लोजन हो रहा है हमारे देश में, है ना, तो हम काफी आगे निकल जाएंगे. तो ये हमारे देश का जो ये रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ पॉपुलेशन है बेतहासा, और तो क्या है, दैट इज द लायबिलिटी और अ बर्डन, ओके, नॉट दैट दे आर कंसिडर्ड एज अ एसेट, ओके. अब देखिए इंडियाज रिलेटिव पोजीशन, इसमें दो केस स्टडी दिया आपके बुक में, आप देखेंगे, स्टोरी ऑफ नारायण एंड स्टोरी ऑफ सुदामा. तो ये जो दो केस स्टडी में आपको बताया गया है कि नारायण और सुदामा एक ही गांव में रहते हैं, दोनों दोस्त हैं, है ना. लेकिन क्या, नारायण को पढ़ने लिखने में इंटरेस्ट है, वो पढ़ता है, काफी आगे निकल जाता है ना, पढ़ लिख करके, और हेल्दी भी है, ठीक है ना. उसके पेरेंट्स एजुकेशन को, हेल्थ को इंपॉर्टेंस दिया, समझा, है ना. और सुदामा के केस में आप देखें कि वो उस बच्चे को पढ़ाई लिखाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है ना. तो क्या होता है, वही काम करता है जो पेरेंट्स उसके कर रहे थे, है ना. तो एक वो सोसाइटी के लिए और देश के लिए, है ना, और फिर जहां वो काम करता है, फिर कहाँ, विदेश वो चला जाता है पढ़ने के लिए, है ना. तो वो क्या हो जाता है, दैट पॉपुलेशन कैन बी कंसीडर्ड एज अ एसेट. बट इन केस ऑफ सुदामा
है ना, दैट इज बर्डन और अ लायबिलिटी, लाइक दैट। ओके, अब देखिए हाउ पीपल कैन बिकम एसेट, है ना, कैसे पीपल एसेट हो सकते हैं। ओके, द इन्वेस्टमेंट ऑन पीपल इज द सेम एज इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड कैपिटल, माइंड दैट। ओके, एडुकेटेड पेरेंट्स इन्वेस्ट हैवीली, है ना, शिक्षित परिवार जो है, पढ़े लिखे जो पेरेंट्स हैं, वो क्या करते हैं, वो शिक्षा पे आंख मूंद करके इन्वेस्ट करते हैं। ओके, और द न्यूट्रिशन पे, है ना, एंड इन्वेस्ट हैवीली ऑन द हेल्थ एंड एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के स्वास्थ्य पे, अपने बच्चों के शिक्षा पे जो शिक्षित पेरेंट्स हैं, द एडुकेटेड पेरेंट्स हैं, बेतहाशा खर्च करते हैं। क्यों? दे नो द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, इसलिए कि उन्हें शिक्षा का महत्व, स्वास्थ्य का महत्व उन्हें पता है ना, उन्हें पता है। वे बैंक में बैलेंस नहीं करते, वो पैसा कहाँ लगाते हैं, बच्चों के एजुकेशन पे। वो पैसा का कहाँ स्पेंड करते हैं, बच्चों के हेल्थ पे, बच्चों के न्यूट्रिशन पे, बच्चों के मिल्क पे, फ्रूट्स पे, वेजिटेबल्स पे, है ना, लाइक दैट, बच्चे का हाइजीन पे। They provide proper nutrition and hygiene to their children. Okay, they know that they are their future. They know that. Okay, they know that they are their future. कि वही उनके भविष्य हैं, बच्चे ही उनके भविष्य हैं, एंड फ्यूचर ऑफ द नेशन, और वही नेशन के भविष्य हैं, है ना, भविष्य हैं। Economy of a country depends upon the equality of life, health, education, training, and efficiency of the people. Okay. Country like Japan, देखिए जापान क्या है, डेवलप्ड कंट्री है। जापान इज द एशियन कंट्री, दैट इज द डेवलप्ड कंट्री। ओके, जापान, country like Japan is developed and rich because of their investment in the field of education and health. वो डेवलप इसलिए है कि हेल्थ पे और एजुकेशन पे बहुत खर्च करता है ना। ह्यूमन कैपिटल इज द बेस्ट अमंग ऑल रिसोर्सेज, माइंड दैट ना। What I said human capital. Okay, which of the capital that is deposited in the bank? No, human capital. I'm telling about the human capital. No, your subject matter is human capital. Okay, not the human capital is the best among all resources. Okay, human resource can make use of land and capital. Land and capital cannot become useful on its own. ना, आदमी ही है जो कि इस लैंड को और कैपिटल को यूज करता है ना। लैंड और कैपिटल अपने आप में यूज नहीं होता है। ओके, इन दिस रेस्पेक्ट ह्यूमन रिसोर्स इज सुपीरियर टू अदर रिसोर्स ऑफ प्रोडक्शन। ओके, दैट्स व्हाई द ह्यूमन रिसोर्स दैट इज द superior resource than the other resources. Okay, जैसे a teacher, a doctor, an engineer, a tailor, a weaver, a craftsman, etc. are an asset. वो क्या है? Asset है to the economy because the more educated and healthier people are benefited by higher incomes they receive. Okay, but in indirect ways the society and the nation is also benefited. Okay, उस टीचर को तो फायदा होता है, उस डॉक्टर को तो फायदा होता है, पैसा मिलता है ना, तो उसको तो फायदा हुआ, उसके परिवार को तो फायदा हुआ, लेकिन वो जो सर्विस प्रोवाइड करता है उससे तो फायदा, लाभान्वित, बेनिफिटेड एज अ सोसाइटी होता है, वो कंट्री डेवलप्ड होता है, लाइक दैट। ओके, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वो नेशन को, सोसाइटी को बिल्डअप करता है, डेवलप करने में रोल प्ले करता है ना, लाइक दैट। तो दैट पीपल कैन बी कंसिडर्ड एज एसेट ना, asset, not a burden or a liability. Okay, they create goods and services for other people. Okay, large population may not be a liability of it, can be turned into productive asset by investment in human capital by way of spending on education, training and health for all. Okay, अब देखेंगे द नेक्स्ट थिंग दैट इज द इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मेन एंड वुमेन ना। पॉपुलेशन के यही दो पार्ट, पॉपुलेशन है ना, लोग में कौन है, चाहे तो स्त्री या पुरुष, आइदर मेल और द फीमेल। ओके, इसी से हमारा पॉपुलेशन बनता है।
The activities performed by a person may be divided into two categories. Okay, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. हम जो भी क्रियाकलाप करते हैं वो दो है, एक इकोनॉमिक और दूसरा नॉन इकोनॉमिक. ओके, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है? ओके, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म टू गेट एन इनकम, टू गेट एन इनकम, टू गेट मनी, टू गेट मनी. The income thus received is used to buy things to satisfy wants. A person goes to his office. A farmer works in the field. A clerk works in an office. A nurse attends to patients in a hospital. A teacher teaches in his school. Okay. A carpenter makes table and chairs. A cobbler makes shoes. The such and such. Okay. I've given so many examples. Okay. Why? To get an income. To get an income. ये जितने भी लोग हैं, जितना भी उदाहरण हमने अभी दिया, ये लोग काम क्यों करते हैं? चाहे बैंक में करें या ऑफिस में करें या सैलून में काम करें या स्कूल में टीचर पढ़ाए, क्यों करते हैं? टू गेट एन इनकम, टू गेट मनी, टू गेट मनी. ओके, therefore they are performing economic activities. So these are the such and such activities which are done to get an income or to get money. These activities are called economic activities. Okay, or just adverse, the non-economic activities. ये क्या है? Are performed, non-economic activities are performed by person for pleasure, okay, mind that, for pleasure or out of love, affection. Okay, out of love and affection. है ना? जैसे any act which is not done for money is an non-economic activity. Any act. Okay, any act that is performed not to get money, that activity is considered as the non-economic activities. है ना? एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा, ज्यादा क्लियर हो जाइएगा. जैसे देखिए, अ स्टूडेंट हु प्लेज क्रिकेट फॉर हिज ओन प्लेजर, अ टीचर हु टीचेज हिज ओन सन और डॉटर. अगर एक टीचर स्कूल में पढ़ाता है तो उसे पेमेंट मिलता है, और वही टीचर अगर अपने सन और डॉटर को पढ़ाता है तो क्या होता है? पैसा नहीं मिलता है. लाइक दैट. Next example, a mother who nurses her child out of love and affection, okay, perform activities not for earning money. एक माँ अपने बच्चे को सेवा शुश्रूषा करती है, लाड़ प्यार करती है ना, उसके कामों में दिन भर लगी रहती है, तो ड्यू टू द अफेक्शन, ड्यू टू द लव, नॉट फॉर अर्निंग मनी, ना. और वही काम अगर कोई आया को रख दिया जाता है करने के लिए, तो वो क्या हो जाएगा? आया के लिए वो क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक एक्टिविटीज. लेकिन मदर के लिए क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. एक टीचर अगर स्कूल में पढ़ाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज. कोचिंग में पढ़ाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज. वही टीचर अपने घर पे अपने बेटा और बेटी को पढ़ाता है, दैट इज द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. दैट्स क्लियर? नो कंफ्यूजन. सच ह्यूमन एक्टिविटीज आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. ओके, अब तो क्या एक और एग्जांपल ले लीजिए. इज बेगिंग एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. क्या बेगर का जो क्रियाकलाप है, जो बेगर जो भीख मांगता है और उसके बाउल में भी पैसे आते हैं, है ना, तो वो क्या उसके द्वारा किया गया काम क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज है? नो, दैट एक्टिविटीज नॉट कंसिडर्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज. हाउ? No, begging is not an economic activity. Okay, without doing any work. अगर आप पैसा आपको मिलता है without doing any work, that action is not considered as economic activities. Okay, begging do not add to the flow of goods and service. Okay, in the economy. Okay, it is an unlawful activity. It is an lawful activity and cannot be termed as the economic activity. और उसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज का टर्म नहीं दिया जा सकता, है ना. जैसे दूसरा एग्जांपल लीजिए, इलीगल एक्टिविटीज ऑफ एंटी सोशल एलिमेंट. ओके, इलीगल एक्टिविटीज, जो भी अवैधानिक एक्टिविटीज हैं ऑफ एंटी सोशल
एलिमेंट, है ना, सच एज ब्राइब टेकर्स, थीप्स, स्मगलर्स, ना, स्मगलिंग, चोरी चपाटी, रॉबरी, है ना, उसमें भी तो सोना चांदी रुपया पैसा आप स्नैचिंग, है ना, करते हैं, also cannot be termed as economic activities, है ना, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं है. ओके, that's all. The next thing which we are going to explain that the human activities, human activities, the economic activities and non-economic activities, है ना, ये दो की चर्चा हम लोग अभी किए. अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज में भी 3 एक्टिविटीज हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. ओके, इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट कैन again subdivided into 3 groups as the primary activities, the secondary activities or the tertiary activities. यानी primary economic activity, secondary economic activities and the tertiary economic activities. Okay, let's start one by one. Primary economic activity, when we produce good by exploiting natural resource. Okay, इट इज एन एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी सेक्टर, है ना, तब वो प्राइमरी सेक्टर का एक्टिविटीज कहलाएगा. ठीक है, सिंस मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स वी गेट आर फ्रॉम द एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, हंटिंग एटसेट्रा, दिस सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड द एग्रीकल्चर एंड द रिलेटेड सेक्टर, है ना. इससे रिलेटेड यानी नेचुरल और एग्रीकल्चरल, एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर अगर एक्टिविटीज हम करते हैं टू गेट मनी, है ना, तो वो क्या है, दैट एक्टिविटीज इज कॉल्ड द प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज. द नेक्स्ट इज द सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज. ये क्या है, प्राइमरी गुड्स आर यूज टू प्रोड्यूस सम अदर कमोडिटी, है ना, मैनुअली और बाय मशीन्स, माइंड दैट, और बाय मशीन्स इन अ वर्कशॉप और एट होम. ओके, सच एक्टिविटीज फॉल अंडर द सेकेंडरी सेक्टर. ये एक्टिविटीज क्या कहलाएंगे, सेकेंडरी. क्यों कि प्राइमरी पर बेस्ड है ना. एज द प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड, और इसमें मैन्युफैक्चरिंग की बात होती है, मैन्युफैक्चर्ड होता है ना. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग. एज दिस सेक्टर इज एसोसिएटेड विथ इंडस्ट्रीज, इट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर also, है ना. एंड द थर्ड और द लास्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट इज कॉल्ड टर्शियरी, है ना, दैट इज the service sector. Okay, how these are activities that help in a development of the primary and the secondary sector. ये activities tertiary sector का जितना भी सारी जो क्रियाकलाप है tertiary sector का, that helps in the development of either primary or the secondary, primary and secondary, either primary or secondary or both, है ना, और both. These activities by themselves do not produce a good, ना, वो अपने आप में कोई गुड्स प्रोड्यूस नहीं करता है, बट दे आर एन एड और अ सपोर्ट फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस. लेकिन ऐड जरूर करता है, जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें ऐड करता है, सपोर्ट करता है. कौन सा एक्टिविटी, द ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू द टर्शियरी, ना, रिलेटेड टू द टर्शियरी प्रमोट करता है. फॉर इंस्टांस, एग्जाम्पल से समझ लीजिए, ज्यादा जल्दी समझ जाइएगा, इजिली समझिएगा. फॉर इंस्टांस, शुगर केन. ओके, गन्ना, ईख. शुगर केन इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस शुगर. ओके, चीनी को उत्पादित करने के लिए गन्ने की जरूरत पड़ती है. बिना गन्ने के शुगर बनेगा क्या, गुड़ बनेगा, नहीं बनेगा. लाइक दैट. तो शुगर केन क्या है, दैट इज द रॉ मटेरियल फॉर द शुगर इंडस्ट्री. ओके, शुगर केन कैन बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम फील्ड टू द मार्केट, है ना, और खेत से कैसे जाएगा मार्केट तक और इंडस्ट्री तक, शुगर इंडस्ट्री तक उसे गन्ने को पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट है. लाइक दैट. एंड फैक्ट्री बाय ट्रक्स और द अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और फैक्ट्री तक जाने के लिए क्या चाहिए, ट्रक चाहिए, या एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. ओके, सच एक्टिविटीज, ओके, ऐसी एक्टिविटीज, है ना, ये क्रियाकलाप जैसे ट्रांसपोर्ट, स्टोर हाउस, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस एटसेट्रा आर कॉल्ड टर्शियरी
एक्टिविटीज, है ना, ये सारी एक्टिविटी, है ना, बैंकिंग, इंश्योरेंस, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब क्या है, ये सारी क्रियाकलाप क्या है, टर्शियरी हैं। क्या है, टर्शियरी हैं। दीज एक्टिविटीज आर कॉल्ड एक्टिविटीज ऑफ सर्विस सेक्टर बिकॉज दे जनरेट सर्विस। ओके, और ये सर्विस जनरेट करता है, टर्शियरी एक्टिविटीज। दैट्स व्हाई दिस tertiary economic activities is considered as the service sector because that generate services. Okay, that's all, and the remaining part of this chapter we will discuss in later. Okay, if any problem you can raise your doubt anytime in the next class. Okay, thank you, have a nice day.